Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद कमल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं कमल सक्सेना। Cabinet approves extension of 24% government EPF contribution for another 3 months, gives nod for over 12,000 crore rupees capital infusion in 3 public sector general insurance companies. Snapping 5 sessions rally, equity benchmarks declined 0.9% amid weak global cues, and gold rises to close just 100 rupees below 50,000 rupees per 10 grams mark in Delhi. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में 24% योगदान की व्यवस्था को और 3 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी डालने को दी अनुमति। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया, 0.9% गिरकर हुए बंद। और दिल्ली सराफा बाजार में सोना तेजी दर्ज करता हुआ 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से सिर्फ 100 रुपए नीचे हुआ बंद। The Cabinet today approved extension of the Employee Provident Fund contribution of 24% for another 3 months from June to August this year. The scheme entails an expenditure of 4,860 crore rupees and will benefit over 72 lakh employees in the country. The government will credit the contributions both for the employee and the employer. The Cabinet also gave nod to capital infusion in 3 public sector general insurance companies. Mr. Javadekar informed that under it, 12,450 crore rupees will be invested in Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited. The Cabinet has also approved development of affordable rental housing complexes for urban migrants and poor as a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana. Under the scheme, 1,08,000 single-bedroom flats will be given to nearly 3,50,000 people. The government will utilize existing vacant state-funded housing complexes to develop more such housing complexes. The government also extended the time limit for availing 3 free gas cylinders by beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Briefing media in New Delhi today, Union Minister Prakash Javadekar said that the beneficiaries will avail the free cylinders till September this year. Earlier, the beneficiaries were able to avail the free cylinders only up till June. The decision will assist nearly 7 crore 40 lakh households in procuring free gas cylinders in the country. मिस्टर भट्टाचार्य, जो आज कैबिनेट ने ये अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो 24% उन्होंने कोविड संकट शुरू होने पर एक अनाउंसमेंट की थी, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है अगस्त तक। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? क्या इंडिकेट कर रहा है ये सरकार का जो समर्थन है, कितना इम्पोर्टेंट है कंपनीज के लिए? देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है, आपको मालूम होगा कि मार्च, अप्रैल और मई का ये डिसीजन लिया गया था कि जो सरकार जो है ऐसे कंपनियों
जो कि मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो इनके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, वो ईपीएफओ के अंदर आती हैं, उनका जो 12% एम्प्लॉई का और 12% एम्प्लॉयर्स का, उसका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वो सरकार तय करेगी। पर 2 कंडीशन दी गई थी, 2 कंडीशन शर्तें जो थी, एक तो था कि जो 100 से ज्यादा एम्प्लॉई ना हो एक कंपनी में, और दूसरा कंडीशन था कि जिस ऐसे कंपनियों में जिसके 90% जो एम्प्लॉई जो थे वो 15,000 के मासिक वेतन से कम मिल रहा है उनको। तो ये अगर 2 कंडीशन अगर आप शर्त अगर पूरे करते हैं तो उनकी जगह उन वैसी कंपनियों में जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वो सरकार देगी। इसका मेन जो उद्देश्य ये था कि ये कोविड संकट के ऊपर बहुत सारे कंपनियों ने जो रेगुलर एम्प्लॉयज को उन्होंने उनका जो काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, कि काम से मतलब निकाल दिया गया था, उससे उनकी ईपीएफ जो एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो उसकी एक डिस्ट्रप्शन हो गई थी। तो उसको जिससे कि डिस्ट्रप्शन कम हो और जो एम्प्लॉय लोग नौकरी भी बरकरार रखे और ईपीएफ का जो कंटिन्यूटी रहे, इसलिए सरकार ने कहा कि सरकार अपने खाते से बजटरी कंट्रीब्यूशन ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अच्छा एक रिलीफ मेजर है, क्योंकि कोविड-19 में आकर बहुत सारे कंपनियों ने अपने जो रेगुलर एम्प्लॉयज को उन्होंने अपने खाते से निकाल देने की एक शंका आती थी। उस शंका को देखते हुए सरकार ने ये कदम लिया है। मैं मानता हूं कि जो करीबन ये जो 8 लाख जो एम्प्लॉयज जो हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा, और करीबन 4 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 4 लाख, उनको ये बेनिफिट मिलेगा जिनके पास 20 से ज्यादा और 100 से कम एम्प्लॉई हैं और जिनके एम्प्लॉय वेजेस महीनों में 15,000 के नीचे जा रहे हैं। And what about capital infusion of some 12,450 crore rupees in the 3 PSU general insurance companies? Would it? This is a move to make sure that the insurance sector, you will remember that insurance sector has been opened up to the private sector, but still largely it is a public sector dominated sector. Where whether it is life insurance or general insurance, the government sector dominates this sector. But in this case, the general insurance companies were in need of capital support, because remember that in these situations of crisis, the general insurance companies will have to make a lot of compensation against policies, etc. So therefore, in any case, there was need to boost the capital adequacy of the general insurance companies, and the government has provided this 12,000 crore rupees so that their capital base is kept intact. And one more clear signal of this capital infusion is that the government is continuing to pursue the goals of consolidating these 3 general insurance companies into one and make it into one large company. You will remember that consolidation and merger of banks have been tried in the public sector banking space. Now, with this capital infusion into these general insurance companies in the state sector, one can expect more steps to come in the coming few months, which will lead to merger and consolidation of these general insurance companies. मिस्टर भट्टाचार्य, जो अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर के लिए उन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात की है, जहां पर जो एग्जिस्टिंग जो खाली पड़े हुए हैं स्टेट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, उनको भी यूटिलाइज करने की बात की गई है। ये कितना इम्पोर्टेंट है ताकि जो अर्बन माइग्रेंट्स और गरीब लोग हैं उनको एक रहने की जगह मिल सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी में? आपने ठीक ही इसका जो संकेत दिया है कि इससे एक तो है कि जो एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज जो हैं, जो इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल ज्यादा होने की एक चांसेस हम आशा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को
एक बूस्ट मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि करीबन ये जो 3.5 लाख लोगों के लिए जो एक रहने की जो एक सुविधा ये उपलब्ध कराई जा सकती है। आपको आपको मालूम होगा, ये जो सारे जो फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंगल बेडरूम फ्लैट्स हैं। ये छोटे वर्गों को, ये लोगों के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल होगा। पर इसकी जो टारगेट जो है वो सबसे ज्यादा वही तबके के लोगों को है जिनको जो माइग्रेंट लेबर, कोविड-19 के बाद जिनको सबसे ज्यादा झटका पहुंचा था, उनको ही ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्हीं के लिए अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम जो है, ये इससे उनका फायदा मिलेगा। आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। इस विस्तृत चर्चा के बाद घरेलू शेयर बाजारों में 5 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज टूट गया और प्रमुख सूचकांक लगभग 0.9% की गिरावट पर बंद हुए। भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार में वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच विशाल कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और टीसीएस में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजारों में भी गिरावट आ गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मजबूती के साथ खुलने के बाद दिन के उच्चतम स्तर से 594 अंक लुढ़क गया और कारोबार की समाप्ति पर 0.94% की मंदी से कुल 346 अंक कम होकर 36,329 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.87% की गिरावट से 94 अंक कम होकर 10,706 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था क्योंकि तुलनात्मक रूप से गिरावट कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.39% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.43% की गिरावट दर्ज हुई। At the stock markets, snapping its 5 sessions rising streak, equity benchmarks today lost around 0.9%. In a highly volatile session, dragged by losses in index heavyweights, Reliance Industries, Infosys, and TCS, domestic indices fell amid weak cues from global peers. After opening on a positive note, the 30-share Sensex declined 594 points from the day's high and finally settled 346 points or 0.9% lower at 36,329. Similarly, the NSE Nifty dropped 94 points or 0.9% to close at 10,706. Broader indices at BSE outperformed the Sensex as they fell marginally. Mid-cap lost 0.4% and the small cap also slipped 0.4%. Bajaj Finance was the top laggard in the Sensex pack, tumbling over 4%, followed by Asian Paints, Bajaj Finserv, HCL Tech, Maruti and Infosys. But IndusInd Bank, SBI, HUL, Tata Steel and ITC were among the gainers. According to traders, domestic market followed volatility in global equities as rising number of COVID-19 cases across the world stoked concerns over economic recovery. The number of cases around the world linked to the disease has crossed 1.17 crore and the death toll has topped 5.43 lakh. In India, the number of infections has spiked to 7.42 lakh with 20,642 fatalities. And at this point of time, we are joined in by market analyst Avinash Gorakshakar. Welcome to the program, Avinash. Hello. Hello. Welcome to the program, Avinash. Yeah, good evening. Good evening. So, what was the market like today? Because so far we were talking about foreign funds investing a lot of money, and later on mutual funds, particularly SIPs, coming to the rescue of the market and coming with a lot of investment. So, how do you see the market at this point of time? I think markets have corrected largely because we have seen a lot of short covering and a lot of buying in the last 8 to 10 days. So I think today's move is largely some sort of profit booking. And as it the number which you mentioned on the SIP front, the June number which has been released by the AMFI association has also been not very encouraging. In fact, equity inflows have also reduced significantly. So that could be also one of the reasons. And FIs after a long spell have been net sellers today. So all in all, I think the markets clearly seem to have gone up in a very short time. So this kind of profit booking was quite normal. And I think the markets will now look at quarter one FY21 earnings, which are going to be out in the next 8 to 10 days.
So I think markets will be guided by those numbers broadly, and the index may just consolidate and remain where it is. So don't expect any big upside in the index, at least in the near term. इनफैक्ट कल ही टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, सो आज हमने देखा कि टीसीएस में भारी गिरावट आई, सो क्या कुछ आपको उसमें लिंक दिखाई देता है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको टीसीएस के रिजल्ट से, सिंस इट इज स्टार्टिंग द रिजल्ट सीजन, एंड जनरल एक्सपेक्टेशंस जून क्वार्टर के रिजल्ट से, एंड उसका क्या लाइकली इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बाजारों पर? आई थिंक अगर हम टीसीएस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नतीजे खराब आने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी जब चौथी तिमाही के रिजल्ट आए थे तभी उन्होंने क्लियरली कहा था कि आगे आने वाले 6 महीने के लिए अनसर्टेनिटी रहेगी, और जिस प्रकार का उनका बिजनेस है वो ज्यादातर यूएस डिनोमिनेटेड है, तो यूएस में जिस प्रकार का इकोनॉमिक माहौल है, हमको लग रहा है कि कोई बड़ा क्लाइंट विन आएगा नहीं, इसलिए शायद जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आएगी वो भी काफी वीक रहेगी। एक ही पॉजिटिव बात है कि कंपनी के पास काफी कैश है, दे कैन मैनेज द सिचुएशन एंड द क्राइसिस बेटर, बट ओवरऑल जो नतीजे के नंबर आएंगे वो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कमेंट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, और वो वहां पे कोई अच्छी खबर आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। तो शायद इसी कारण से थोड़ा बहुत आज रिजल्ट के पहले थोड़ा बहुत आज आपको बिकवाली देखने को मिलेगा, और जो काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, लेकिन कल की कमेंट्री मार्केट कीनली वॉच करेगी। और अभी आप क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा कि जून में हमने खासा उछाल देखा है बाजार में, और ये इसकी एक जो फीचर रहा है वो है कि रैली थोड़ी ब्रॉड बेस्ड रही है। अगर हम 1 जून से अब तक देखें तो स्मॉल और मिड कैप ओवरऑल आउट परफॉर्म करे हैं लार्ज कैप्स को, सो क्या ये इसको हम एक संकेत मान सकते हैं कि ये जो बढ़त आ रही है बाजार में ये सस्टेन रहेगी, लंबी दौर तक चलेगी? देखिए, मार्केट्स में जो बढ़त आई है वो ज्यादातर प्योरली लिक्विडिटी से आई है। फेड की जो स्टिमुलस है और जो बाकी जो ग्लोबल कंट्रीज है, जो लिक्विडिटी मार्केट्स में इंडिया में आ रही है, इसी मेन कारण से आप फ्रंटलाइन कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में आपने बहुत बड़ी तेजी देखी है। हालांकि कॉन्ट्रारी जो फंडामेंटल्स है वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हो चुके हैं, और अनुमान है कि कम से कम 6-8 महीने के लिए फंडामेंटल्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये तेजी रहेगी, क्योंकि ये प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो इसलिए नतीजे अगर खराब आते हैं जून क्वार्टर के और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी वीक आती है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटे समय में काफी बड़ा अपसाइड बोथ फ्रंट लाइन एज वेल एज मिड कैप शेयरों में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स ऐसे लेवल पे है जहां पे ऑलरेडी मार्केट्स ने पूरी तरह से FY21 के अर्निंग्स तो डिस्काउंट किए, और जो वैसे भी कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिखाएंगे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना ही ठीक रहेगा। So, today's data from mutual funds showed that asset under management came down in June by 8%. And on Monday, day before yesterday, it was reported that foreign funds turned net sellers in July, and it was the SIP inflows which was keeping the market up. So, do you think this some sort of a data discrepancy between the two figures which came on Monday and today? See, I think in the beginning I mentioned to you that SIP numbers for the month of June have been a major disappointment, and I think as you rightly mentioned, equity inflows which were largely coming in were from the SIP investors. Now, if SIP flows continue to show negative trends for the next 2 to 3 months, definitely it's a big negative surprise, because that was one of the key reasons the market was being held on at these levels. More importantly, FI flows are a function of what has happened on the global liquidity front. So typically, I would believe that this may not, the SIP downturn may not have a very big impact in the near term, because it is basically foreign money which is more driving the markets as of now. Until the time US elections are not over, that is by November 4, our sense is that liquidity will continue to rise in the market, and that will keep the markets on the upside. But yes, there could be a lot of volatility, because these flows could obviously be, sometimes negative and extremely positive on some days. So I think one has to be very careful and watchful. But net, I think, the flows from the domestic side getting lower is definitely not a good sign. It means that investors actually have now stopped SIPs because they foresee a lot of uncertainty in the market. And when this liquidity is flowing in the market, like you say, some of the penny stocks attract a lot of attention among small ordinary investors. So what do you suggest to such investors when it comes to penny stocks?
See, I think frankly, this is a very talked about question on penny stocks. I would believe that, investors who have made money are lucky enough to make money on penny stocks. I think, quite frankly and honestly, investors should not put their hard-earned money on penny stocks because they don't rise purely on their fundamental value, but purely rise because of speculative reasons and because of the liquidity kind of gush which has come in the markets. So when this liquidity actually, completely subsides or starts slowing down, these are the companies which actually incur heavy losses for investors because they don't have any fundamental value in them. So I think better is, whoever is making money should book the profits and put their money in the bank and don't overly, speculate on these companies. So thank you, Avinash, for being with us on the program. Thank you. मिस्टर भट्टाचार्य, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख करें, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने अपना जो एक स्ट्रैटेजी अभी स्पेल आउट की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर जोर देंगे, चाहे वो रोड्स हों, रेलवेज हों, डिमांड क्रिएट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए. सो एक भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये आपको कितनी कारगर स्ट्रैटेजी लगती है और क्या लगता है आपको इससे किन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा? उन्होंने पीएसयूज को भी कहा है कि आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं. आपने सही कहा है. इस वक्त जो फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो एडवांटेजेस हैं वो दो तरह के एडवांटेजेस होंगे. एक तरफ तो आपको जो इमीडिएट जो इन्वेस्टमेंट से जो नौकरियों की जो सृजन होगी उससे काफी फायदा मिलेगा इकोनॉमी को, क्योंकि अगर नौकरियां का अगर बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट जैसे रोड हुआ, इवन रेलवेज में जो भी काम हो रहा है उसमें भी अगर देखें आप तो उस नौकरी से आने से मैं मानता हूं कि इकोनॉमी में डिमांड वृद्धि होने की जो आशाएं बढ़ जाती हैं, और डिमांड अगर जब बढ़ जाती है तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बेहतर होती है. तो एक तरफ तो ये एक फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देने से, और दूसरा फायदा ये है कि हमारे देश में बहुत सालों से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक डेफिसिट दिखती है, जो कमी दिखती है, उस कमी को भी ये पूरा कर सकता है. जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि रेलवे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर रेलवे सर्विस का भी जो आने का एक नया एक इनिशिएटिव लिया गया. रोड सेक्टर में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था कि अगले 2-3 सालों में करीबन 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में होगी. अगर आप पावर सेक्टर में देखेंगे तो जो 90,000 करोड़ की एक डिस्कॉम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो फाइनेंशियल जो एक डेट का एक बहुत बड़ा भार था, उसको कम करने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया गया था. तो पावर देखिए, रेलवेज देखिए, रोड्स देखिए, ये सारों सेक्टर में मैं मानता हूं कि ये जो एक जोर या एक एम्फेसिस दिया जा रहा है वो देश की अर्थनीति की जो एक मांग जो है उसको भी पूरी करेगी, जो एक कमी है उसको पूरी करेगी, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होने से जो नौकरियों की जो वृद्धि होगी उससे एक इकोनॉमी में एक जिसे हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल आने का एक उम्मीद बढ़ जा सकती है. इस चर्चा को विस्तार देंगे, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. विश्व के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ने से आर्थिक सुधार को लेकर शंकाएं पैदा हो गईं, जबकि अतिरिक्त आपूर्ति के डरों के चलते तेल के मूल्यों में नरमी आ गई. हालांकि चीन में ब्लू चिप कंपनियों में तेजी लगातार बनी रही. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.7% के उछाल में रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% की बढ़त में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की वृद्धि में रहा. दूसरी तरफ जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% गिरकर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां गिरावट का रुख था. लंदन का फुटसी 0.1% के नुकसान पर था. जर्मनी का डैक्स 0.5% की गिरावट पर था और फ्रांस का कैक 0.8% के नुकसान पर था. And on Wall Street, stocks declined yesterday, a day after the benchmark index logged its longest streak of gains this year, as investors weighed expectations of an economic recovery against risks from a sharp jump in new coronavirus cases nationwide. So the Dow Jones Industrial Average plunged 1.5%, the S&P 500 lost 1.1%, and the Nasdaq Composite fell 0.9%.
इकोनॉमिक रिकवरी की कितनी आपको आशाएं हैं, और जो रिसेशन का एक अनुमान दिए हैं आईएमएफ ने, वो कितना बड़ा आपको कंसर्न लगता है? देखिए, जो इस वक्त के जो आंकड़े हमारे सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि जो जून के जो आंकड़े आए हैं उसमें जो एफएमसीजी सेक्टर में जो एक रिकवरी जो दिख रही है, और ये रिकवरी सिर्फ कोविड प्री कोविड लेवल से ही नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर में अगर देखें आप, जैसे एफएमसीजी सेक्टर हुआ, इवन ऑटोमोटिव सेल्स में भी एक रोबस्टनेस, नई रोबस्टनेस आ रही है। वो भी ज्यादा अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, पर मैं समझता हूं कि एक अनलॉकडाउन फेज 2 में इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बढ़ने की अगली जो ग्रीन शूट जिसे कहते हैं वो दिख रहा है। अगर आप जीएसटी का भी जो अगर कलेक्शन देखेंगे, अगर जो वे बिल्स जो होती हैं, ई वे बिल्स की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको देखेंगे, तो हर तरह से लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी थोड़ी बहुत गति आ रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन में देखेंगे, उसमें भी गति आई है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे आप, खरीफ का जो सोइंग हुई है, जो बुआई हुई है, वो पहले सालों से काफी ज्यादा हुई है। जो अगर उर्वरक, जिसे हम फर्टिलाइजर कहेंगे, उर्वरक का जो खपत इस बार काफी ज्यादा हुई है, और क्योंकि बुआई ज्यादा हुई है, तो अगर आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र को अगर आप नजर डालेंगे, तब आपको लगेगा कि इकोनॉमी में थोड़ी बहुत जो पहले जो एक धीमापन था, उसमें उसके तुलना में एक जान तो जरूर दिख रही है। पर रिसेशन का जो डर जो था पहले, मैं समझता हूं कि पहले से वो डर अभी थोड़ा कम है, पर अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो आर्थिक जो एक कंट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वार्टर का जो कंट्रैक्शन वो लगता है कि होगा जब आंकड़े आएंगी, पर सेकंड क्वार्टर में कितना कंट्रैक्शन होगा वो एक आलोचना का विषय रहेगा। और हमें देखना पड़ेगा कि जो इस हफ्ते के आखिर में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट, जून का आउटपुट लेवल जो आएगा, उसमें हम देख सकेंगे कि ये सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट लेवल में। आइए रुक करते हैं करेंसी बाजार का। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर होकर 75 रुपए 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और डॉलर में मजबूती के चलते रुपए में गिरावट आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार जहां विदेशी फंडों का प्रवाह भारत में आने से रुपए को समर्थन मिला, वहीं मजबूत डॉलर, घरेलू शेयर बाजारों में उथल पुथल और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से रुपए पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। And in the international market, crude oil prices today dipped as industry data showing a build-up in U.S. stockpiles added to worries about oversupply, while in a surge, coronavirus cases in the United States and other areas cast doubts over a pickup in fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $43 per barrel, while U.S. crude prices were at $40.50 per barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 723 रुपए महंगा होकर 49,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वैश्विक कीमतों में वृद्धि और रुपए में गिरावट के चलते सोने में ये तेजी आई। हालांकि चांदी 104 रुपए सस्ती होकर 50,416 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,800 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी $18.36 प्रति आउंस पर थी। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के चलते सोने में सुरक्षित निवेश के रूप में भारी खरीदारी हुई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। प्रोफेसर भट्टाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Cabinet approves extension of 24% government EPF contribution for another 3 months, gives nod for over 12,000 crore rupees capital infusion in 3 public sector general insurance companies. Snapping 5 sessions rally, equity benchmarks declined 0.9% amid weak global cues, and gold rises
to close just 100 rupees below 50,000 rupees per 10 grams mark in Delhi. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.